Hello friends, how are you all? Happy Janmashtami to all of you. Today we are going to have a look at a very important chapter which includes a highly underrated but very important skill of communication, and that is listening. Friends, listening is the first communication skill that we learned and developed. But I tell you honestly that we have never been officially, formally trained in developing our listening skills. कभी स्कूल में या कॉलेज में लिसनिंग स्किल्स के ऊपर लेक्चर हुआ करते थे? कभी आपको कोई ऑडियो सुनाया गया था और फिर आपको क्वेश्चन आंसरिंग किए गए थे? Listening is something that we need every day. Especially once we become professional and start working, we need listening skills very much. As a part of our job, we need to interact with a lot of people on a daily basis, and most of this communication involves talking with them. When we talk, it's a two-way communication. So many a times we play the role of sender, we keep on speaking, but to ensure that effective communication takes place, we also need to become receivers. And when we become receiver, our role is to listen. So listening skills is our today's topic. Let's begin. What is listening? It is given in your book, giving attention to sound or action. So when you listen to someone, you first pay attention to whatever sound that comes out from their mouth. See, right now I'm speaking. That means the voice is coming from my mouth. And whatever words I'm speaking, the sound of those words you will be paying attention to. Along with the words, along with the sound of voice, I may be moving my hands, I may be having a lot of different expressions on my face, I may be moving here bitten. You will not only listen to my words or the sound of my voice, you will also watch my movements, my body movements, my gestures, my facial expressions. So listening means paying attention to what you hear and what you see. That is sounds as well as action. Effective listening is the process of analyzing sounds in a language. Whenever somebody speaks, he or she may be using a particular language. And whatever words he or she is using are nothing but some sounds of that language. So when you listen to someone, your brain starts analyzing those sounds and then organizing them into recognizable patterns. It means whenever someone speaks and you listen, your ear and brains, they both come together and start functioning at the same time. Whatever sounds your ears receive, they pass on the sounds to your brain, and your brain tries to analyze those sounds and tries to recognize them. Not only recognizing but interpreting and understanding the message and trying to infer its meaning. तो जब भी आप किसी से बात करते हो और सामने वाला बंदा बोलता है, तो आप क्या करते हो? आपके आपके जो कान है वो और आपका जो दिमाग है वो, ये दोनों ही चीज कोऑर्डिनेशन में काम करती है. मान लो अभी मैं कुछ आपको बता रहा हूं बोलकर, तो इस वक्त आपके जो कान है, तो जो कोई भी शब्द, जो कोई भी आवाज, जो कोई भी साउंड मेरे मुंह से निकलता है, उसको रिसीव करते हैं.
रिसीव करने के बाद वो जो साउंड है या वो जो साउंड पैटर्न है उसको आपके कान आपके दिमाग को पास ऑन करेंगे, भेजेंगे। आपका दिमाग वो साउंड पैटर्न्स को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसका कोई मतलब निकालने का प्रयत्न करेगा। इन्फरिंग मीनिंग माने उसका कोई मतलब ढूंढने का प्रयत्न करेगा। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। So one thing we have understood very clearly that when you listen, not only your ears but your brain also work. Listening is the receiving part of communication. When you listen to someone, you are playing the role of a receiver. So listening is the receiving part of communication. And listening is all about receiving information through ears and eyes. Ears, eyes, and finally brain. When you listen, you don't just hear the sounds. You also look at the person who is speaking. जब आप किसी को सुनते हो माने कि लिसनिंग करते हो तो आप सिर्फ सुनते नहीं हो, आप वो व्यक्ति को देखते भी हो। वो व्यक्ति कैसे खड़ा है, उसके हाथ क्या कर रहे हैं, उसकी नजरें कहाँ पे है, वो कैसे बोल रहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजों के ऊपर आप गौर करते हो, जो कि हियरिंग में नहीं होता। मतलब यहां पे नॉट ओनली टू बट 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन। आपके कान सामने वाला बंदा जो बोलता है वो आवाज रिसीव करते हैं, आपकी आंखें सामने वाले बंदे को ऑब्जर्व करती है, देखती है उसको, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, और ये दोनों ही मैसेज आपके कान और आपके आंख आपके ब्रेन को पास ऑन करते हैं। फिर आपका ब्रेन वो दोनों ही चीजों को एनालाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके उसका कोई मीनिंग निकालने का कोशिश करता है, और जब वो सही मीनिंग निकालता है तब जाके लिसनिंग होता है। देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर हमको पता भी नहीं चलता, बिकॉज इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑफ कोर्स एज अ लिसनर यू नीड टू पे proper attention to what the speaker is saying and what he is doing. It is an active, integrated communication skill that demands two things: energy and know-how. भैया देखिए, listening is not a God-gifted skill. It's not something that is inherited. Listening is something which you need to work upon, you need to practice, you need to develop and acquire. लिसनिंग ऐसे ही हमारे साथ नहीं आता। हाँ, हमको सुनने का शक्ति भगवान ने दिया है, पर सुनने में हम जो सुनते हैं ना, दैट इज हियरिंग, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लिसनिंग के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो लिसनिंग इज एन एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, माने यहाँ पे बंदे को, रिसीवर को, लिसनर को एक्टिव रोल प्ले करना है। वो बैठा रहेगा और सोचेगा कि हाँ मुझे सब समझ में आएगा, तो ये नहीं होगा। अब जब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप भी ध्यान से सुन रहे हो और आपका दिमाग ये समझने का कोशिश कर रहा है कि ये हिमांशु सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे ही बैठ के म्यूट करके मेरा मूवी नहीं देख रहे हो, आप पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो। और इस वक्त आपकी आंखें, आपके कान और आपके दिमाग, ये तीनों ही चीजें कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम कर रही है। आश्चर्य की बात यह है कि ये जब जो हो रहा है ना, तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन, वो हमें तो पता ही नहीं होता। तो लिसनिंग स्किल के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है। कौन सी दो चीजें? एक तो एनर्जी। अगर आप बीमार हो, अगर आपने ठीक से, आपको नींद नहीं आई रात को, अगर आप मूड में नहीं हो, अगर आपको भूख लगी है, तो इन सारे हालात में जब आप लिसनिंग करने का कोशिश करते हो तो बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि योर बॉडी नीड्स सम एनर्जी। लिसनिंग, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ स्किल व्हिच इज एन एक्टिव स्किल एंड यू नीड टू पुट इन सम अमाउंट ऑफ एफर्ट. So when you put an effort, you need energy, you need support from your body. So energy का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तीन ऑर्गन्स आपको यूज करने हैं। आपको आंखों का भी इस्तेमाल करना है, कान को भी यूज करना है और साथ में दिमाग को भी इस्तेमाल करना है। तो इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ रही है।
एंड नो हाउ का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। आपको आना भी चाहिए कि लिसनिंग कैसे करते हैं। इफ यू जस्ट हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट लिसनिंग but if you don't know how to actually listen then you cannot listen। मतलब नॉलेज के साथ साथ वो चीज को आना, वो स्किल होना भी उतना ही आवश्यक है। इट इज अ पर्पसफुल, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए 3 क्वालिटीज बताई गई है एक्टिव लिसनिंग की। सबसे पहले पर्पसफुल। You are not watching me right now without any purpose. You do have a purpose. You want to learn about this new skill. You want to learn about this particular chapter. So there is a purpose. Powerful. You need to apply some power. That is some sort of energy. And productive. It's going to give you, it's going to fetch you some good results. If not now, maybe in future. But yes, if you develop your listening skills, it's going to give you a lot of good results. It's a technique used for understanding what is being said by taking into account how something is said and the non-verbal signs and body language that accompanies it। मतलब 2 चीजें हैं। When you listen, you do 2 things। You pay attention to words, at the same time you also pay attention to the action of the sender। That means his or her body language and other clues that you receive। मतलब जब भी आप लिसनिंग करते हो तो आप सामने वाला जो बोल रहा है वो मैसेज को तो सुनते ही हो, पर उसके अलावा सामने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज और उसके द्वारा जो कोई भी नॉन वर्बल मैसेज आपको कम्युनिकेट हो रहा है उसे भी आप गौर से देखते हो। मतलब व्हेन यू लिसन यू नीड टू डू 2 थिंग्स, hearing with attention and watching the body language and non-verbal signals that it communicates to you। It requires a lot of practice and patience। देखिए everybody cannot become an active listener। हर एक बंदा एक अच्छा लिसनर नहीं होता। लिसनिंग करने के लिए आपके अंदर 2 गुणों की आवश्यकता है। यू नीड 2 क्वालिटीज एंड दिस 2 क्वालिटीज आर प्रैक्टिस एंड पेशेंस। सबसे पहले तो बहुत सारा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर आप इम्पेशेंट हो देन यू कैन नॉट बिकम एन एक्टिव लिसनर। पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए और उसके साथ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ना? आई टेल यू, whenever we try to watch any Hollywood movie, and if we are not good listeners, we don't understand what the people are talking about in that movie, because you can just see what is happening on the screen. It would be very difficult to understand what people are talking about, and when you don't understand that, you cannot understand what is happening, what is going on. Pause. Sure. વાંધો નહીં બેન, pause કર્યું છે। જન્માષ્ટમી, થેન્ક યુ। અરે વાહ, મંજરીનો પ્રસાદ, વાહ વાહ। I noticed that you were there, so I asked him to pause. It's okay. છે આજે તો વાંધો નહીં, ટાઈમ છે। ठीक है, चले आगे। Okay. Listening is not easy. It is the foundation of effective human relations. So listening is not easy. Listening आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए एफर्ट्स लगता है। और हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत करना पसंद नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कल अगर एग्जाम है तो आज रात को पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर पता है रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि ऑन एन एवरेज किसी भी बंदे को मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, आप हो या मैं हो, करनी पड़ती है वो बात अलग है। सो लिसनिंग के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो हम सीख सकते हैं। और सीखने के बाद ऐसा नहीं कि बस मुझे सब आ गया, उसको रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करके उसको शार्पन करना पड़ेगा, उसका एक एज बनाना पड़ेगा।
तब जाके you can become an active listener. And there is one more specific reason to learn and develop the skill. It is the base, it is the foundation of good human relations. See, we need to understand that we are living in a society. And we are not the only person living in the society. There are a lot other people around us. And if we want to live peacefully and productively, we must have very good relationship with all the people around us. They can be our neighbors, they can be our far relatives, they can be our friends, they can be our colleagues. We must have good relations with all of them. And when can we develop good relations? For that, we need to help each other, we need to understand each other, and we need to respect each other. Not only that, we also need to do a lot of talking with each other. And see, when you talk, you are not the only person who will be speaking. You will have to become a good listener, because you will have to play the role of a receiver many a times. Only if you are a good listener, you can communicate to others that you respect them and you care for them. And when they notice this, they start developing good feelings for you. And that is how relationship comes into picture, and that is how relationship will grow and sustain for long. सो एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए लोगों के साथ आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और हर बार जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो सिर्फ आप नहीं बोलते हो, इट्स अ टू वे प्रोसेस। मतलब आप भी बोलते हो, और जब सामने वाला बोलते हो तो आप उसको ध्यान से सुनते हो, क्योंकि आपको उसको आंसर देना होगा, आपको वो बात को आगे लगा बढ़ाना होगा। तो उस टाइम पे आपको कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी? स्पीकिंग की न, आपको जरूरत पड़ेगी लिसनिंग की। सो अगर आप अच्छे लिसनर हो, अगर कोई आपसे बात करता है और आपको ध्यान से सुनते हो और प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो बंदे को फील होगा, उसको रियलाइज होगा कि आपने बहुत ही ध्यान देकर उसकी बात पे गौर किया, आपने समझने का एफर्ट डाला, आपने समझने का कोशिश किया कि वो आपको क्या कहना चाहता था। और इससे क्या होगा, वो बंदे के दिल में आपके प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा होगी, वो आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा या करेगी। और ऐसे ही धीरे धीरे आपके बीच में एक अच्छे संबंध होंगे, एक अच्छे रिलेशनशिप होगा। सो अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आप एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बिल्डर भी हो सकते हो। It is very important for both managers as well as workers. See, whether you are a manager or a worker, this is a very important skill for you. What is the role of a manager? A manager needs to get things done through others. मैनेजर का काम होता है कि दूसरे लोगों के पास काम करवाना, दूसरे लोगों से काम निकलवाना। ये कब पॉसिबल होगा? फॉर दैट ही नीड टू कम्युनिकेट विद देम on a regular basis, and every time he communicates, he is not the only one who will be speaking. Many a times he will have to pay attention to what the workers or what the team members are speaking about. And only if he is a good listener, he can listen and understand what are their demands, what are their needs, what are their problems, and what are the issues they are facing. And accordingly he can help them out, and together they can work as a team and achieve the goals of the organization as well as the department. अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, तो मैनेजर का सबसे बड़ा काम होता है लोगों से काम करवाना, लोगों से काम निकलवाना। उसके लिए उसको रेगुलर बेस पे अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और जब आप कम्युनिकेशन करोगे एज अ मैनेजर, तो आप सिर्फ बोलोगे नहीं, काफी हद तक, काफी अरसे तक आपको सामने वाले को बोलने देना पड़ेगा। और जब सामने वाला बंदा बोलता है, मतलब आपका कोई टीम मेंबर बोलता है, तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप सुनोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। और जब आप लिसनिंग करोगे तब जाके आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स, उनके प्रॉब्लम्स पता चलेंगे।
और तब जाके आप उनको हेल्प कर पाओगे और तब जाके पूरा टीम अपने डिपार्टमेंट का और पूरी कंपनी का गोल अचीव कर पाएगा. So whether you are a manager or worker, you need to have a very good listening skills. And any oral communication cannot be completed without effective listening. ओरल कम्युनिकेशन जहां पे बंदा बोल के अपनी बात प्रेजेंट करता है, वहां पे जब तक सामने वाला लिसनिंग नहीं करता तब तक वो कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता, वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता. Good listeners can also be good negotiators and they can handle or face crisis or critical situations. कोई भी मुश्किल आती है तो if you are a good listener, you can listen to the views and suggestions and feedback of the people around and you can reach the best possible decision or conclusion or solution. So अच्छा लिसनर होने से कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो आप उसको इजीली टैकल कर पाओगे. दिक्कत यह है ना कि सबसे पहली कम्युनिकेशन स्किल जो हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर डेवलप होती है, वो होता है लिसनिंग. पर उसके बावजूद इट इज रेयरली टॉट इन द क्लासरूम. जो मैंने शुरुआत में ही बोला था, हमको स्पीकिंग सिखाया जाता है, हमको राइटिंग सिखाया जाता है, हमको रीडिंग सिखाया जाता है, हमको मुश्किल से या ज्यादातर बिल्कुल नहीं लिसनिंग सिखाया ही नहीं जाता. और जब आप एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, व्हाट यू बैडली नीड इज टू हैव एन एक्टिव लिसनिंग स्किल. नाउ देयर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश सुनने के लिए. वन इज टू हियर and one is to listen. So many times it happens that people get confused when they talk about hearing as well as listening. What is the difference? Now we'll talk about the difference. You should never confuse between hearing and listening because both of them are quite different. They are poles apart. Hearing is a physiological process which involves receiving the sound waves by the eardrums and transferring them to the brain. Hearing is a physiological process. What is physiological process? That is a process where your body is used, where your body is involved. So what happens in hearing? Receiving the sounds by the eardrums. आपके कान का जो पर्दा होता है जिसे ईयर ड्रम बोलते हैं, वो सामने वाले के आवाज के वेव्स को रिसीव करता है और वो साउंड वेव्स को फिर वो ईयर ड्रम कहां पे ट्रांसफर करता है? ब्रेन को. So it's actually a physical process where your ears receive the voice, receive the sound waves and transfer those sound waves to the brain. It is an involuntary act, मतलब वो अपने आप होता है. It's an automatic process. We don't put in effort to hear anything. Say for example, अगर आप घर पे बैठे हो और आपको गर्मी लग रही है तो आपने पंखा चालू किया, फिर भी गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप क्या करोगे? पंखे को और फास्ट करोगे. अब जब पंखा आपने फास्ट किया तो पंखे में से कुछ आवाज आपको आएगी, पंखा घूमने की आवाज आएगी. क्या वो आवाज को आप ऐसे कान लगा के सुनते हो कि हाँ बढ़िया सी आवाज आ रही, मजा आ रहा है, चलो? We don't do that because that is something which happens automatically. अगर हमारे कान अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में है, तो कोई भी आवाज जो आजू बाजू होती है वो हमें सुनाई देती है. उसके लिए हमको ऐसे कान लगा के ध्यान देकर सुनना नहीं पड़ता, एफर्ट लगाना नहीं पड़ता. दैट इज अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस. तो बाहर कोई चिल्ला रहा है, यहाँ कोई झगड़ रहा है, यहाँ पे पंखा जोर से चल रहा है, वहां पे पानी लीक हो रहा है, तो ये सारी आवाजें हम सुनते हैं पर हम कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि दैट्स अ नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस. Listening is not like that. Listening is a process where there are
two processes are involved, two activities are involved, physical as well as mental. When you hear something, only your ears work. And it passes on those sound waves to your brain. So brain doesn't work anything after that. But when you listen, your ears receive the sounds and transfer those sound waves to brain, and then your brain starts analyzing and interpreting and attaching meaning to those sounds. So your brain will come into picture only when it is a listening and not hearing. जब आप लिसनिंग करते हो तभी जाके आपके कान और आपके दिमाग दोनों का रोल आता है. हियरिंग में सिर्फ कान का काम होता है, दिमाग का काम नहीं होता. So it is said that listening requires focus and concentrated effort. That means mental as well as physical activity. फोकस करना पड़ता है, आपको कंसंट्रेशन करना पड़ता है और आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाके आप लिसनिंग करते हो. लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. हियरिंग में सिर्फ कान का उपयोग होता है, लिसनिंग में कान के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग करना पड़ता है. It's a voluntary activity and deliberate. डेलिबरेट माने पर्पसफुल, वॉलंटरी माने वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे सुनना है. So you need to be mentally prepared for listening, and then once the other person starts speaking, you need to start putting in effort to pay attention to the sounds and the body language and non-verbal messages, and then your brain will start your brain will start decoding the message. Listening means paying attention not only to the story, but how it is told, the use of language and voice, and how the person uses his or her body. So in short, when you listen, you need to be aware of both verbal as well as non-verbal message. Verbal message माने बंदे ने जो बोला, and non-verbal message माने बंदे ने जो नहीं बोला पर जो आपने देखा और सुना, in terms of voice, tone, volume, pitch, speed, in terms of eye contact, facial expressions, gestures, posture, and so on. Now we'll discuss about the importance of listening at workplace. So it is written that effective communication involves 50% or more listening. मतलब पूरा जो हम दिन में कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसमें 50% से ज्यादा तो हम लिसनिंग करते हैं या हमको लिसनिंग करना होता है. इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग कि बचपन से लेके आज तक हमने बहुत लिसनिंग किया पर फिर भी हमें वो नहीं आता. मतलब हमको सिर्फ इतना लग रहा है कि हमें लिसनिंग आता है पर हमें लिसनिंग नहीं आता. स्कूल में जब टीचर पढ़ाते थे तो हमें लगता था कि हम उन्हें सुन रहे हैं. कितना सुन रहे हैं वो तो एग्जाम का रिजल्ट आने पे पता चलता है. सिमिलरली ऑफिस में जब आप काम करते हो और आपके ऊपर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, तो उस टाइम पे आपने अगर लिसनिंग किया तब जाके वो सारी बातें आप समझ पाओगे और उसके मुताबिक आप काम कर पाओगे और तब जाके आपका सैलरी बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, आप अपने गोल्स टाइमली बेस पर अचीव कर पाओगे और आपका प्रमोशन होगा. सो आपका असली वैल्यू आप कंपनी को तभी बता पाओगे जब आप लिसनिंग करना वो भी एक्टिव लिसनिंग करना शुरू करोगे. So when you listen, you don't just pay attention to the words, you also pay attention to the tone of voice, facial expressions, and body language. And see what happens when someone is speaking and the other person is not listening. Messages are
easily misunderstood. See, it's very obvious कि अगर मैं बोल रहा हूं और आप नहीं सुन रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा. शायद आपके कान के ऊपर मेरी आवाज पड़ेगी, आपको ये लगेगा कि हेमंत सर कुछ बोल रहे हैं, पर समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर आप लिसनिंग नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन एंड यू विल मेक मी फील फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड. सीधी सी बात है ना. देखिए, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो चीज इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और मेरे से ज्यादा उसकी जरूरत आपको होगी, तभी मैं आपको बता रहा हूं. सो अगर आप उस वक्त पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, अगर आप मेरी बात को गौर से नहीं सुन रहे हो, तो मुझे कैसा फील होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, इरिटेटेड, मेरे को गुस्सा आएगा. और जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. So if you want to become a good communicator, you need to become a good speaker. And in order to become a good speaker, you need to first learn to become an active listener. अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा स्पीकर बनना पड़ेगा. और अच्छा स्पीकर बनने से पहले और बनने के लिए आपको सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा. Only if you are good at listening, you can be good at speaking. And when you are good at speaking and listening both, probably you can become a good communicator, at least an oral communicator. Your competence in listening is directly proportional to that of speaking. मतलब अगर कोई बंदा अच्छा बोल लेता है तो हाँ, उसका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा. बट इफ इज नॉट अ गुड लिसनर, वो इंप्रेशन खत्म हो जाएगा. That would be a temporary impression. Okay, you are a good speaker, but if you don't listen when I speak, then your reputation of being a good speaker will be of no importance. Both the skills complement and supplement each other. So जितना important speaking है, उतना ही rather उससे बहुत ही ज्यादा listening भी important है. And you can see the relationship is symbiotic. सिम्बायोटिक माने एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, एक दूसरे पर अवलंबित, एक दूसरे पर आधारित. And then only it can become a fine communication. Listening is not a passive process. मतलब जैसे मैंने बोला कि आप बैठे और कोई बोल रहा है तो मतलब लिसनिंग नहीं हो जाएगा. आपको ध्यान देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो सामने वाले बंदे की आवाज के साथ साथ उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके शायद लिसनिंग होगा. सो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, इट इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस. और यहां पे बताया है कि एक्टिव लिसनिंग मीन्स बीइंग फुल्ली इन्वॉल्व. जितना इन्वॉल्वमेंट स्पीकर का है, बोलने वाले का है, उतना ही रादर उससे थोड़ा और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए. See, when we communicate something, we have a purpose. So if I communicate some message to you, I may have a purpose. At the same time, when you are receiving the message, when you are listening to what I say, you should also have a purpose. And both this purpose माने मेरा पर्पस और आपका पर्पस वो मैच होना चाहिए. मैच माने फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं तो आपका पर्पस भी पढ़ना होना चाहिए. मुझे पढ़ाना है और आपको नहीं पढ़ना तो हमारा पर्पस मैच नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. आपको पढ़ना है पर मुझे नहीं पढ़ाना तो भी मैचिंग नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. सो व्हेन आई स्पीक, you as a receiver must pay attention and listen. Then only our communication can become successful and effective. Fully का मतलब क्या हो गया? यहां पे बोला है कि one has to be fully present. Fully present माने क्या? तो बोला physically, mentally, emotionally and psychologically present. मतलब आपका सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, मुझे आपका फिजिकल, मेंटल,
इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रेजेंस चाहिए। माने आपका शरीर तो यहाँ पे होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका ध्यान, आपका दिमाग, आपका मन भी यहीं पे होना चाहिए। और सिर्फ सुनने से लिसनिंग नहीं होगा, सुनने के बाद जो चीजें समझ में नहीं आती वो पूछना भी चाहिए कि सर ये शब्द पता नहीं चला, सर आपने वो पॉइंट बताया वो पता नहीं चला, सर यहाँ पे कंफ्यूजन, मतलब दैट इज हाउ द एक्चुअल लिसनिंग हैपेंस। विल लर्न अबाउट दैट लेटर इन डिटेल। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि अ पर्सन इज फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। ऐसा कब होता है? व्हेन द पर्सन इज इमोशनली डिस्टर्ब। आपके घर में कोई टेंशन है, भगवान ना करे, पर आपके घर में अगर कोई टेंशन चल रहा है और आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, आपके दिमाग में टेंशन होगा। और अगर आप मेरा कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हो तो लिसनिंग करना मुश्किल होगा। आप बैठोगे वहीं पे, आप मुझे सुनोगे, आप मुझे देखोगे, पर लिसनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है इट इज नाउ ऑक्यूपाइड, इट इज नाउ बिजी इन प्रोसेसिंग दोज इमोशंस। आपके दिमाग में जो टेंशन है, आपका दिमाग उसके साथ बिजी हो गया है, दिमाग हाउसफुल हो गया है, वो आपके टेंशन वाला जो इमोशन है उसको प्रोसेस कर रहा है। तो भैया मेरा जो शब्द मेरे मुंह से आ रहा है उसको कैसे प्रोसेस करेगा? ठीक है ना, दिमाग की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सो व्हेन यू आर इमोशनली डिस्टर्ब, आपकी इच्छा होने के बावजूद आपके दिमाग को आप यूज नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग को आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग को आप काम में नहीं ले पाओगे। मेरा मैसेज समझने के लिए, see it is given as an example. I am teaching in a classroom and there are a number of students, but one of those students is not paying attention because he is in his own thoughts. He has to go home for vacation and daydreams of celebration that will take place at home. 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली, मतलब ऐसे एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली, तो बंदा छुट्टियों के बारे में सोच रहा है, सपने देख रहा है, ख्वाब देख रहा है कि छुट्टियां होंगी, मैं घर जाऊंगा, घर पे मम्मी पापा से मिलूंगा, भाई से मिलूंगा, दादी से मिलूंगा, मेरे दोस्तों से मिलूंगा, फिर हम बहुत मजा करेंगे, मिठाई खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लासरूम में जब बंदा ये सोच रहा है तो उसका दिमाग ऑलरेडी बिजी हो गया है, ऑक्यूपाई हो गया है कुछ सोचने में। अब उस वक्त पर अगर मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो उसका दिमाग उसको रिसीव नहीं करेगा। कान के ऊपर आवाज आएगी और शायद उसमें से कुछ आवाजें कान के द्वारा दिमाग तक पहुंचेगी, पर दिमाग का शटर बंद होगा। क्यों बंद होगा? वहां पे ऑलरेडी एक मूवी चालू है और दिमाग इज नॉट लाइक अ मल्टीप्लेक्स, वहां पे एक टाइम पे एक ही मूवी चलता है। तो अभी कौन सा मूवी चल रहा है? छुट्टियों का। तो ये दूसरा मूवी जो सामने आ रहा है वो वहां पे एंटर नहीं हो पाएगा। एक ही स्क्रीन के ऊपर 2 पिक्चर नहीं चलेंगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा। Similarly, when the teacher announces that he or she is going to ask questions by random selection, psychologically a weak student will feel intimidated. मतलब क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है क्लास में कि टीचर कुछ पढ़ाने के बाद ऐसा कहते हैं कि अभी मैं किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा और वो बंदे को, वो लड़के को या लड़की को आंसर देना होगा। तो कई बार इसमें ये होता है कि अगर कोई बच्चा है जो शाय है, बहुत ही शर्मीला है और उसको बोलना पसंद नहीं है, ज्यादा बोलता नहीं, रिजर्व्ड काइंड ऑफ है, इंट्रोवर्ट है, तो वो टेंशन में आ जाएगा। उसने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा, उसने मेरा टॉपिक मैंने जो पढ़ा है वो ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, उसके बावजूद आंसर देने के लिए उसको डर लगेगा। और मान लो अगर मैंने वही बच्चे को सिलेक्ट करके पूछा कि बेटा आंसर बताओ, और वो नहीं बता पाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और मेरे दिमाग में वो बच्चे के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि वो ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं उसको एक नॉटी बॉय समझ लूंगा और दूसरी बार भी वही एटीट्यूड के साथ मैं उसके साथ डील करूंगा, जो कि गलत होगा। ये सब होने का रीजन एक ही है कि लिसनिंग नहीं हो पाया, या अगर लिसनिंग हुआ पर कुछ और फैक्टर्स है जिसको हमने कंसीडर नहीं किया। आइए बात करते हैं व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग क्यों करना है, लिसनिंग करने के पीछे का रीजन क्या है। सो दिस विल आल्सो टेल यू अबाउट सम इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। टॉक अबाउट
purposes of listening. The very first purpose of listening is to focus on the message being communicated. Many times it happens that someone is communicating something important, but because of distractions around and our own thoughts, we are not able to pay attention. And you know, when you don't pay attention to some important thing, you will not be able to understand it fully. So the purpose of listening is to forget about the distractions and our own thoughts and concentrate, focus on what the speaker is saying. लिसनिंग का पहला पर्पस है कि बोलने वाले की बात के ऊपर ध्यान देना और आजू बाजू जो चल रहा है या हम कुछ हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसको साइड पे रख देना है. थोड़ा मुश्किल है पर पॉसिबल है. व्हेन यू डिसाइड कि अभी सामने वाला बंदा जो बोलने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सुनना समझना मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है. तो आप आजू बाजू कुछ भी होगा उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, डिस्ट्रैक्शन कितनी भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और उस वक्त पे जब कम्युनिकेशन होगा उस वक्त पे आपका पूरा अटेंशन बोलने वाले के ऊपर होगा और उस वक्त आप कुछ और सोचोगे भी नहीं. So the first purpose is to fully focus on the message which is being communicated. Second purpose is to gain full and accurate understanding about the point of view and ideas of the speaker. सामने वाला बंदा जो बोल रहा है उसको और उसके पीछे उसका जो पर्पस है उसको भी हमें समझना है. See, when a message is communicated, it's not only made up of words. It also consists of emotions and feelings of the speaker. So when we listen, we don't only listen to the words, but we also observe the tone of voice, the volume, the speed, as well as the non-verbal signs that the body of the sender is sending us. तो जब हम लिसनिंग करते हैं तो दूसरा पर्पस ये होता है कि सामने वाला बंदा वाकई में क्या कहना चाहता है, एक्चुअली क्या कहना चाहता है उसको समझना. मतलब शब्दों को तो सुनना समझना, पर उसके साथ साथ सामने वाले बंदे का जो फीलिंग है, उसके जो इमोशंस है, उसका जो पर्पस है उसे भी समझना. तीसरा, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड. असेस करना, इवैल्यूएट करना, समझना कि एक्चुअली क्या कहा जा रहा है, सामने वाला मुझे क्या कहना चाह रहा है और वो क्यों ऐसा कहना चाह रहा है, वो मुझसे क्या फीडबैक की उम्मीद करता है, ये सोचना. टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल्स टू एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग. माने जब आप लिसनिंग करते हो तो आप सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते हो, पर सामने वाले बंदे के आई कांटेक्ट को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसके जेस्चर्स को, उसके टोन ऑफ वॉइस को और उसके पोस्चर को भी ऑब्जर्व करते हो. क्योंकि शब्दों के साथ साथ ये सारी चीजें भी आपको कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट करती है और आप ये सारी चीजों को मिलाकर एक कॉमन मीनिंग समझने का कोशिश करोगे. सो वो भी एक एडिशनल पर्पस होगा लिसनिंग का. To show interest, concern and concentration. See, the good listeners, they always pay attention to the speaker. And by paying attention to the speaker, you show your interest, you show that you are concentrated and you show your concern about his message. And indirectly, you show your care and respect for the speaker. जब हम लिसन करते हैं किसी को, जब कोई बंदा बोलता है हम ध्यान से उसको सुनते हैं, तो हम वो बंदे को ये इनडायरेक्टली बता कि मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट है, मैं आपकी बात को गौर से सुन रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. और तब जाके इनडायरेक्टली आप उसको ये भी कम्युनिकेट करते हो कि आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपको आदर करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे आपके लिए रिस्पेक्ट है. और उससे क्या होगा, when you listen, you will indirectly encourage the speaker to communicate fully, openly and honestly. अगर मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाता हूं और अगर मैं देखता हूं, नोटिस करता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे ध्यान से, गौर से मैं जो पढ़ा उसको सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे खुशी होगी और मैं अपनी बात को और ओपनली और ऑनेस्टली और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा. To develop a selfless approach.
to let the speaker speak. See, when you listen, you indirectly tell the speaker कि आप बोलिए, हम यहीं पे हैं, आपको ही सुन रहे हैं. So you are putting the speaker first, मतलब आप अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे स्पीकर को. That is also a purpose. So वो एक सेल्फलेस अप्रोच हो गया, निस्वार्थ भावना हो गई. To arrive at a shared and agreed understanding, that is mutual understanding in acceptance of the views. See, when you listen, you try to understand the views of the speaker, and whatever you understand, that will be mutual. You will understand and respect speaker's point of view. At the same time, speaker will understand and respect your point of view. So it's a mutual respect and understanding. So these all are the purposes of listening. अब मैं एक छोटा सा आपको एक रिस्क वाला पॉइंट बताऊंगा, जो नॉर्मली वो गलती हम करते हैं, जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए. Many times it happens that we are listening, but we are actually not listening, because our purpose is not to listen to what the speaker is saying. Our purpose is to form the ways to respond. और ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि जब कोई बंदा हमसे बातचीत कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग वो जो बोल रहा है उस पर ध्यान देने की बजाय, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को गौर करने की बजाय, हम क्या आगे कहेंगे, हम क्या रिप्लाई देंगे, उसको सोचने में लगा हुआ होता है. See now, as I told you, कि your brain is not a multiplex, it can do one thing at a time. So when you give multiple orders to your brain at a time, it gets confused and it will start making mistakes. There is a concept of multitasking. मल्टीटास्किंग एक ही तरह से हो सकता है, फिजिकल एंड मेंटल. माने आप कोई फिजिकल प्रोसेस कर रहे हो, उसके साथ आप कोई मेंटल प्रोसेस कर रहे हो. यू कैन नॉट मल्टीटास्क मेंटल एक्टिविटीज टुगेदर, बिकॉज यू विल कंफ्यूज योर ब्रेन. सो यहां पे क्या होगा कि जब आपको सुनना है तो आपके दिमाग को सिर्फ उन्हीं चीजों पर गौर करना चाहिए, उन्हीं शब्दों पर गौर करना चाहिए जो सामने वाले के मुंह से आ रहे हैं. अगर उस टाइम पे आपने दिमाग को दूसरा कमांड दे दिया, दूसरा ऑर्डर दे के भैया ये सुनना नहीं सुनना मैं तुम पर छोड़ता हूं, पर हाँ मुझे आगे क्या बोलना है वो तुम सोचना शुरू करो, अब दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास दो चीज हो गई. आपने मेंटली उसको ऑर्डर दे दे कि भैया मुझे आगे क्या बोलना है वो सोचो, और उसके साथ कान भी उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है जो सामने से आ रही है. दिमाग बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, एक ही स्क्रीन पर दो पिक्चर नहीं दिखा पाएगा. सो कहां पे कॉम्प्रोमाइज करेगा? ज्यादातर हमारा दिमाग कॉम्प्रोमाइज करेगा लिसनिंग के ऊपर. जो कोई भी इंफॉर्मेशन कान के द्वारा उसको मिल रही है, जो कि सामने वाला बोल रहा है, उसको प्रोसेस करने का काम दिमाग बंद कर देगा. और कौन सी चीज के ऊपर वो काम करना शुरू करेगा कि मुझे आगे क्या बोलना है, जो कि आपने उसको बोला है. And the most surprising element is that, friends, we are not aware about this is. ये चीज के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता रहता है. तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सामने वाले को सुनने की बजाय हम आगे क्या बोलेंगे, हम उसको क्या रिप्लाई देंगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर दे. तो लिसनिंग विल बी अफेक्टेड. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. तो जैसे कि हमने यहां पे देखा कि लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव and interpret the message. Without ability to listen, messages are easily misunderstood. So if an oral communication is happening and if you are a receiver, you will have to listen, you will have to pay attention to the words, to the body language and the tone of voice of the speaker. Then and then only you will probably understand what he is trying to communicate. If you don't do that, if you don't listen, you may misunderstand the message. ओरल कम्युनिकेशन में अगर आप रिसीवर हो, माने कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपको लिसनिंग करना चाहिए.
तभी जाके वो बंदा जो कहने की कोशिश कर रहा है वो बात, उसका पर्पस आपके दिमाग में क्लियर होगा, आप समझ पाओगे, वरना कंफ्यूजन होगा. Now we'll focus on the difference between hearing and listening. So the first difference is hearing means sounds that enter your ears. So it's a physical process and it happens automatically. So listening is a physical process. I'm sorry, hearing is a physical process and it happens automatically. So what about listening? Listening requires focus and concentrated effort. That means it is not an automatic process. You will have to put in effort and it is mental as well as physical. So हमारे पास दो डिफरेंस आए हियरिंग और लिसनिंग के. Hearing is a physical process whereas listening is physical as well as mental process. Hearing happens automatically, listening does not happen automatically. You need to put in focus and concentrated effort. Hearing एक शारीरिक प्रक्रिया है, लिसनिंग शारीरिक व मानसिक प्रक्रिया है. हियरिंग में हमें कोई एफर्ट नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होता है. लिसनिंग के लिए हमें फोकस और एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है. Pause. Start. Listening means being aware of both verbal and non-verbal messages. So, along with the words of the sender, you also pay attention to his or her voice and the body language, which we don't do when we are hearing. जब हम हियरिंग करते हैं तो हम शब्दों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, बॉडी लैंग्वेज और आवाज की वॉइस की बात तो छोड़िए. पर जब हम लिसनिंग करते हैं तो हम स्पीकर के माने सेंडर के शब्दों के अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके वॉइस के ऊपर भी ध्यान देते हैं. Listening is not a passive process, it's an active process. So you can gain one more difference. Hearing is a passive process, whereas listening is an active process. Because listener has to be engaged, listener has to be involved as much as the speaker. जितना योगदान, जितना इन्वॉल्वमेंट, जितना एंगेजमेंट बोलने वाले का होता है, उतना ही मेरे हिसाब से उससे कई गुना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सुनने वाले का भी होना चाहिए. You hear blaring horns and get exposed to noise pollution when you are in traffic jam. You don't pay attention. It's just a physical activity. But when someone continuously keeps blowing the horn, you may pay attention, you may look in the mirror, and you may want to understand what the person is trying to communicate. And then you understand that he wants to overtake you, so you give him way, you give him side and let him go. So that's a listening process. So listening is a physical as well as mental process because there is an involvement of brain as well. Now we will talk about different types of listening skills. And the first type is discriminative listening. Discriminate करना माने भेदभाव करना, differentiate करना, difference decide करना.
So what happens in discriminative listening? We try to find out the difference between different sounds. And if we cannot hear the differences, then we cannot understand the meaning of the message. I'll give you an example here. In case you go abroad, say you go to US and you come across an American guy, you start talking with him and he may ask you, wanna join me? You might not be able to understand what he is trying to say. By saying, wanna join me, the American is trying to ask you, do you want to join me, maybe for lunch or dinner or something else? But we Indians are used to with a very specific way of saying, that is, do you want to join me or would you like to join me? But American has got a very different way of saying it. He might tell you, wanna join me? We may not understand because the sounds are different and we are not used to, we are not trained with that type of sound. We can understand if someone asks us, do you want to join me or would you like to join me? But we have never heard the word wanna before. Wanna is a kind of American slang which means want to. So if you have not interacted with any American before and if you are not aware about such slangs, you will not understand. So even when the message was communicated, you fail to understand because you fail to attach the correct meaning to the message. This is an example of discriminative listening. Another aspect of discriminative listening is understanding or listening to the emotions of a person. When someone is trying to tell you something, he or she conveys you message in two ways, through words and through emotions. Many times it happens that we just pay attention to the words and we fail to recognize the emotions. As a result, we may understand the message, but we may not understand the purpose behind the message, and so we may not be able to give the proper feedback. So these are the examples of discriminative listening. It also happens in India. जैसे मान लो आप पहली बार सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को विजिट करो, यू आर गोइंग टू बेंगलुरु से फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ा भाषा नहीं आती. सो यू गो टू बेंगलुरु फॉर सम वर्क और वहां पर जाकर आपको कोई साउथ इंडियन बंदा मिलता है एंड you start speaking with him in English. Good thing is that he knows English. उसे इंग्लिश आती है. आप उसके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू करते हो, पर बीच में वो कुछ बोलता है जो हमें समझ में नहीं आता. That is because of the difference in accents. सेम लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोला जाता है अलग अलग जगह पर. जैसे मैंने इंग्लिश में जो एग्जांपल दिया वही चीज को रिपीट करते हैं. अगर आप अमेरिकन बंदे से बात करते हो तो जिस तरह से हम यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं और जिस तरह से वो लोग वहां पे इंग्लिश बोलते हैं उसमें काफी अंतर है, काफी डिफरेंस है. और अगर वो डिफरेंस के बारे में आपको नहीं पता तो अमेरिकन बंदा जो बोलता है या फिर जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि साउथ इंडियन बंदा जो इंग्लिश में बोलता है वो हम समझ नहीं पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कान हमारे दिमाग को उस तरह के शब्द उस तरह के उच्चारण को सुनने का आदत नहीं है, हमें कभी उसका ट्रेनिंग नहीं दिया गया. जब भी कोई बंदा आपको कोई मैसेज देता है बोलकर, तो वो मैसेज में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसमें क्या कहा गया है और उसको कैसे कहा गया है, माने कि शब्द और इमोशंस, फीलिंग्स.
ज्यादातर ये होता है ना कि हम शब्दों को सुन लेते हैं पर शब्दों के पीछे जो इमोशंस होती है उसको हम देख नहीं पाते। तो वो बंदे का मैसेज के पीछे का जो पर्पस है और जो फीडबैक वो हमसे चाहते हैं वो हम समझ नहीं पाते। हम उसको जवाब तो दे देते, फीडबैक तो दे देते, पर उसमें वो सही फीडबैक नहीं होता, क्योंकि हमने सिर्फ शब्दों पर गौर किया, हमने वो फीलिंग्स को कंसिडर नहीं किया। ये दोनों ही एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के होते हैं, जहां पे हम कुछ समझते हैं और बाकी कुछ चीजें को हम इग्नोर करते या ध्यान में नहीं देते। तीसरा एस्पेक्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का, बॉडी लैंग्वेज। If we just pay attention to the words of the speaker and don't pay attention to the non-verbal messages sent by his body language, we will not be able to attach the right meaning. As a result, we will not be able to understand the message in its right sense, and we may not be able to give the proper feedback. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का एक तीसरा एस्पेक्ट है जो कि है बॉडी लैंग्वेज। ओरल कम्युनिकेशन के दौरान जब हम सामने वाले बंदे के शब्दों के ऊपर ही ध्यान देते हैं पर उसकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान पे नहीं लेते, तो हम उसके मैसेज को सही मायने में, सही अर्थ में, सही तौर पर समझ नहीं पाते और उसकी वजह से हम उसको सही फीडबैक नहीं दे पाते। तो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है एज फार एज डिस्क्रिमिनेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग इज कंसर्न। साउंड्स, body language, and voice. Next type of listening is comprehension listening. What is comprehension listening? Lexicon of words, माने words, and grammar, so that we can understand what others are saying. So there are two things, words and grammar. Words will tell you random ideas and grammar will tell you about the proper organization of those ideas. See, शब्दों के द्वारा हम हमारे आइडियाज कम्युनिकेट करते हैं, पर जब शब्दों को जोड़ने के लिए, उनको एक मीनिंग देने के लिए हम ग्रामर यूज करते हैं। सो एज अ रिसीवर जब हम लिसनिंग करते हैं तो हमारे पास शब्दों के अलावा ग्रामर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हम शब्दों को समझ पाएंगे, स्पीकर क्या कहना चाहते हैं वो मैसेज को हम ध्यान से समझ पाएंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग का मतलब होता है लिसनिंग टू कॉम्प्रिहेंड, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। It is also known as content listening or informative listening. So when we pay attention to the words of the sender in order to understand what he is trying to convey, that is an example of comprehension or informative listening. The third type of listening is known as critical listening. Critical listening means listening to evaluate and judge, form an opinion about what is being said. You can also call it judgmental listening. It includes assessing the strength and weaknesses, agreement and approval. जब कोई बंदा आपको कोई मैसेज दे रहा है और आप जजमेंटल बन के उसको सुन रहे हो, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, वो क्या कह रहा है उसको जज करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल लिसनिंग। पॉज। शुरू करते हैं। सो क्रिटिकल लिसनिंग में होता क्या है
देखिए, हर एक बंदे के पास खुद का एक नॉलेज बेस होता है, खुद के कुछ अनुभव होते हैं, और जब भी कम्युनिकेशन होता है तो हमारे नॉलेज और हमारे अनुभव के आधार पर हम सामने वाला जो बोलते हैं उसको जज करने का, समझने का कोशिश करते हैं। सो क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज जो सामने वाला समझा रहा है, बता रहा है, हमारा दिमाग उसको क्रिटिकली जज करता है, माने हमारा नॉलेज और हमारे जो अनुभव है उसके बिना पर सामने वाले के मैसेज को हम इवेल्युएट करने का कोशिश करते हैं, उसको वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं, और अपने हिसाब से, अपने नॉलेज और अपने अनुभव के हिसाब से हम सामने वाले के मैसेज को इवेल्युएट करते हैं, उसका एक मतलब निकालते हैं। तो ये हो गया इवेल्युएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज बायस्ड लिसनिंग। बायस अनदर वर्ड इज प्रेजुडाइज, गुजराती में इसको कहते हैं पूर्वग्रह, माने किसी भी चीज, व्यक्ति या परिस्थितियों का अनुभव लिए बिना अगर हम उनके बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं, ज्यादातर की नेगेटिव ओपिनियन, तो उसे बायस या प्रेजुडाइज कहा जाता है, क्योंकि हम वहां पे गलत साबित होते हैं। जैसे मान लो मैं आज पहली बार आपका क्लास ले रहा हूं, और मेरे क्लास में आकर पढ़ाने शुरू करने के इमीडिएटली बाद कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, तो मेरे दिमाग में वो बच्चे के बारे में एक नेगेटिविटी उत्पन्न होगा, पैदा होगा। मुझे लगेगा कि ये बच्चे को पढ़ना नहीं, ही इज अ नॉटी बॉय, ही इज अ मिस्chievous बॉय, ही डजंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, ही इज नॉट करियर ओरिएंटेड। सो क्या होगा, मैंने एक जजमेंट ले लिया, क्योंकि वो बच्चे को देखकर इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में सोच आई, वो सोच ने मुझे नेगेटिव फीलिंग दे दी। अब हो सकता है ना कि वो बच्चे से मिलकर उसके साथ बात करने के बाद, उसको मेरे सेशन में 3-4 बार देखने के बाद मैं अपना ओपिनियन चेंज करूं, पर अभी जो ओपिनियन फॉर्म हो वो तो हो गया ना। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बायस और प्रेजुडाइज। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, we try to hear what we want to hear, and we don't like to hear what we don't want to hear. हम जो सुनना चाहते हैं हम वही सुनते हैं, और हमें जो नहीं सुनना उसको हम सुनने का प्रयत्न भी नहीं करते। अब कोई भी मैसेज होता है ना, तो उसमें दो पार्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमें सुननी अच्छी लगती है, जो हमें सुनना पसंद है, जो हम सुनना चाहते हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें जो कि हमें पसंद नहीं है, जो हम सुनना नहीं चाहते। पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब सामने वाले ने जो कोई भी मैसेज दिया उसको वैसे ही 100% हम रिसीव करके समझने का कोशिश करते हैं। अब बायस लिसनिंग में क्या होता है कि रिसीवर, सेंडर का 100% मैसेज आता है, उसमें से उसे जो सुनना है वो ही सुनता है, और बाकी सारी चीजों को इग्नोर करता है। मतलब हो सकता है कि 100% मैसेज सेंडर ने कम्युनिकेट किया, और हम एज अ रिसीवर उसमें से सिर्फ हमने 50% चीजों को ही सुना, क्योंकि वो ही हमें सुनना था, वो ही हमें पसंद थी, और बाकी की 50% चीज हमने नहीं सुनी क्योंकि वो हमें नहीं पसंद थी, हम वो नहीं सुनना चाहते थे। तो दिस इज नथिंग बट अ बायस्ड लिसनिंग। इसका रिजल्ट ये होगा कि कम्युनिकेशन अधूरा होगा। Instead of 100% message, we only received and processed 50% message. So actual communication 50% हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ बायस था, हम वो ही सुना हमने जो हम सुनना चाहते थे, और जो और काम का मैसेज था उसको हमने इग्नोर कर दिया। बायस लिसनिंग के बाद लिसनिंग का दूसरा एक प्रकार है, उसे हम कहते हैं इवैल्यूएटिव लिसनिंग। सो हियर we make judgments about what the other person is saying against our values and assessing them good or bad, worthy or unworthy. इवेल्युएटिव लिसनिंग में हम सामने वाले ने जो मैसेज दिया उसको हमारे हिसाब से इवेल्युएट करते हैं, हमारी जो वैल्यूज है, हम जिस चीज में बिलीव करते हैं उसके बिना पर सामने वाले के मैसेज को हम इवेल्युएट करते, जज करते हैं, और हम उसको ऐसे जज करते कि इसने जो कहा वो सही है या गलत, वो सुनने लायक है या नहीं, वो अमल में उसको उस पर अमल करना चाहिए या नहीं। हम इसको ऐसे जज करते, इवैल्यूएट करते हैं।
Evaluative listening is particularly pertinent when the other person is trying to persuade, perhaps to change our behavior and maybe to change our beliefs. Evaluative listening कब होता है? जब सामने वाला बंदा हमारे बिलीफ्स को, हमारे बिहेवियर को चेंज करने का कोशिश करता है. वो टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, काउंसलर हो सकता है, या फिर सेल्स पर्सन भी हो सकता है. Whenever we notice that someone is trying to change our beliefs and change our behavior, we become defensive. As a result, we start judging them and their message on the basis of our values. And we try to judge them as right or wrong, correct or incorrect, worthy or unworthy. And we try to find out the pros and cons of their message. एंड लॉजिकली हमें जो सही लगता है हम उसी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं. लिखा है इट मेक्स सेंस लॉजिकली एज वेल एज वेदर इट इज हेल्पफुल टू अस. इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल, जजमेंटल और इंटरप्रेटिव लिसनिंग. मतलब हमारे जो वैल्यूज हैं, जो चीजों को हम सही मानते हैं, जो चीजों को हमें बचपन से सिखाया गया है, वो चीजों के अगेंस्ट में हम सामने वाले के मैसेज को जज करना शुरू करते हैं. और उसके बिना पर हम डिसाइड करते हैं कि सामने वाले ने जो बोला वो सही है या गलत, वो चीज करने लायक है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट. सो इसे कहा जाता है इवैल्यूएटिव लिसनिंग या फिर क्रिटिकल लिसनिंग या फिर जजमेंटल लिसनिंग. द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड अप्रिशिएटिव लिसनिंग. See, when you listen to some music, when you watch some movies, or when you attend the lecture of the person you respect and love the most, these are the examples of appreciative listening. You listen to the information, you listen to the message to appreciate, because that message help you meet your needs and goals. तो जब आप ऐसी कोई चीज सुनते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अप्रिशिएटिव लिसनिंग, बिकॉज यू लाइक दैट एंड यू अप्रिशिएट दैट. सो हो सकता है कि अरिजीत सिंह आपका फेवरेट प्लेबैक सिंगर है और आप अरिजीत सिंह का कोई गाना सुनते हो और सुनकर आपको खुशी मिलती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अप्रिशिएटिव लिसनिंग. If you are a pro Narendra Modi and if you love to listen to his speeches, whenever you are listening to Narendra Modi's speech, that is an example of appreciative listening. You feel good, you love that, you like to listen him a lot. Sympathetic listening, sympathy का मतलब होता है सहानुभूति. Whenever you notice that someone is in a pain, someone is in a trouble, and he or she is trying to tell you something, you become sympathetic and you listen to him. That is an example of sympathetic listening. Through sympathetic listening, you show your care and concern to the other person. Here you show that you care about the other person and show your concern through listening. You allow them to express their sorrow and you allow them to express their happiness. सामने वाला बंदा खुश हो या दुख में हो, अगर आप उसके मैसेज को ध्यान से गौर देकर सुनते हो, तो आप उसको सिंपैथी दे रहे हो. Through the sympathy, you want to support that person, you want to tell that person that I am with you, whatever has happened, I am with you. तो ज्यादातर नेगेटिव सिचुएशन में हम सिंपैथेटिक लिसनिंग करते हैं. जब कोई बंदा रोते रोते हमारे पास आता है और अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर करता है, तब हम जो लिसनिंग करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपैथेटिक लिसनिंग. इसके बिल्कुल सिमिलर पर थोड़ा सा डिफरेंस वाला लिसनिंग है जिसे हम कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग. एम्पैथी का मतलब होता है कि हम अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर
उसकी सिचुएशन को, उसके प्रॉब्लम्स को उसके एंगल से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करते हैं. This is a very difficult thing to achieve. But there are a lot of good people who are empathetic in nature. They can feel the problems of others. They can feel the challenges that the other people are facing. They can feel the pain that other people have. और ऐसे लोगों को ही तो हम इंसान कहते हैं. માણસ એને જ કહેવાય જે બીજાની તકલીફોને સમજી શકે, જેના માટે શબ્દ છે એમ્પથી. એટલે જ્યારે આપણે પોતાની જાતને સામેવાળાની જગ્યાએ મૂકીને એના પ્રોબ્લેમ્સને, એની તકલીફોને એની નજરથી જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને સમજીએ કે હું જો આની જગ્યાએ હોત તો હું પણ આવું જ કરત, સો એને કહેવાય એમ્પેથેટિક લિસનિંગ. You try to understand how others are feeling. You listen not only to the message, the words, you also pay a lot of attention to the emotions of the speaker. You actually try to feel what they are feeling. एक सिंपल उदाहरण आपको. कई बार होता है ना कि हम हिंदी मूवी देखते हैं और मूवी में कोई ट्रेजिक सीन आता है, जब जितने भी एक्टर्स हैं उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग, और हम यहाँ पे हमारी आंख में से भी आंसू की बूंदें टपकने लगती है. इसका मतलब ये हो कि स्क्रीन के ऊपर जो पेन, जो दुख एक्टर फील कर रहा है या फिर दिखा रहा है, वो दुख हमने फील किया, रियलाइज किया. तो ये जो लिसनिंग है फ्रेंड्स, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग. ज्यादातर गर्ल्स हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी. लड़कों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़े पत्थर दिल होते हैं. लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो ज्यादा ये चीज को महसूस कर सकती है. एंड अनदर टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज थेराप्यूटिक लिसनिंग. थेरापी का मतलब होता है कि एक तरह की ट्रीटमेंट. मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट have this type of listening abilities. Whenever a patient with mental problem comes to them, they keep quiet, pay a lot of attention to the patient, ask only small questions, and listen to that person patiently with full dedication and concentration and attention to understand what are his or her problems, what is the situation he or she is undergoing, and what is his reaction, in order to understand his mental state and to treat him properly. ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस तरह का लिसनिंग करते हैं, थेराप्यूटिक. इनका पर्पस होता है किसी भी मेंटल पेशेंट को ट्रीट करना और अच्छा करना. तो जब भी कोई मेंटल पेशेंट आता है और अपना प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, तो ये लोग बड़े ही गौर से उसको सुनते हैं. ज्यादातर वो कोशिश करते हैं कि उसको इंटरप्ट न करे. छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाते हैं ताकि वो बंदा डिटेल में बता पाए, और ये लोग ध्यान से सुनकर उसके प्रॉब्लम को, उसकी मानसिक स्थिति को समझ पाए, ताकि वो उनको सही ट्रीटमेंट दे पाए. So this is an example of therapeutic listening. Therapeutic listening is not only limited to psychologists or psychiatrists. Sometimes in social situations, friends or family can also do this type of listening. मान लो किसी स्टूडेंट को एग्जाम का टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, और एग्जाम के 2 दिन पहले ही डिसाइडेड कि आई वांट टू टेक अ ड्रॉप, मुझे ड्रॉप लेना है. तो इस टाइम पर उसका फैमिली और उसके फ्रेंड्स उसके साथ रहेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको पूछेंगे, और जब वो बताएगा कि उसके क्या क्या कंसर्न है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये लोग उसको ध्यान से, गौर से सुनेंगे, उसको समझाने का कोशिश करेंगे बाद में, उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी फीलिंग्स को समझ के, और उसको क्योर करने का कोशिश करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थेरेप्यूटिक लिसनिंग. कई बार कंपनीज में मैनेजर्स, ट्रेनर्स, कोचेस एंड काउंसलर ऑल्सो डू दिस.
Whenever they notice that किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जॉब परफॉर्मेंस कम हो रहा है, तो they take time to meet that employee, sit with him or her, share a cup of tea or coffee, and ask him just a couple of short but focused questions. वो ये पता करने का कोशिश करते कि सामने वाले के दिल में क्या है, उसके मन में क्या है, और वो उसको पूरा मौका देते हैं अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी टेंशन है, वो बाहर निकालने के लिए वो उसको बोलते हैं. और जब वो बंदा बोलता है तो ये लोग इंटरप्ट नहीं करते, वो ध्यान से सुनते हैं समझने के लिए कि उसका रूट कॉज क्या है, वो जो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया उसका रूट कॉज क्या है, और उसके बाद उसको काउंसिल करते, उसको गाइड करते, उसको हेल्प करते उसमें से बाहर निकलने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए. तो ये जो लिसनिंग है, जो मैनेजर्स, कोचेस, ट्रेनर्स और काउंसलर करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थेराप्यूटिक लिसनिंग. नेक्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग इज डायलॉगिक लिसनिंग. डायलॉग माने टू वे कम्युनिकेशन. सो हियर वी लिसन during a conversation, and interchange of ideas as well as information. So when you listen in order to interchange or share ideas or information, that is an example of dialogic listening. Why do we do so? We want to learn about the other person and how they think. It is also known as relational because it helps you to build good relations. जब भी हम किसी बंदे को समझने के लिए, उसकी सोच को समझने के लिए उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और जब वो बोलता है तो हम ध्यान से उसे सुनते हैं, सो ये हो गया डायलॉगिक लिसनिंग का एग्जांपल. उसे हम रिलेशनल लिसनिंग भी कहते हैं क्योंकि वहां पे हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, आप अगर कॉलेज में आज पहली बार गए और वहां पे आपने किसी लड़के या लड़की के साथ बात करने का कोशिश किया, तो आपका शायद ये पर्पस होगा उसको जानना, वो कौन है, कौन से क्लास में अभ्यास करता है, वो कौन से स्कूल में पढ़ता था, वगैरह वगैरह वगैरह. बिकॉज यू डोंट नो एनीबडी इन द कॉलेज, सो यू वांट टू मेक वन फ्रेंड एटलीस्ट, जिसके साथ आप बात कर सको, जिसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सको. So here the purpose is to just to know the person and his thoughts and his feeling, because you want to make him your friend. So this is an example of dialogic listening. Next is called relationship listening. You listen to somebody in order to sustain or develop relation. किसी के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए, संबंध को टिकाने के लिए आप जो लिसनिंग करते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप लिसनिंग. फॉर एन एग्जांपल, आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, a boss listens to what the employee is saying. It is an example of relationship listening. After a heated quarrel between a husband and wife, husband or wife listens to the spouse. That is an example of relationship listening, where our purpose is to sustain, maintain, and develop the relationship. Usually, you see this type of listening during negotiation and sales situations. Another type of listening is known as selective listening, which I'm very sorry to say this is a negative type of listening. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सुनने वाला बंदा अपने दिमाग में एक बायस लेके चलता है, या तो सामने वाले बंदे के लिए, या फिर वो जो टॉपिक के ऊपर बात करे वो टॉपिक के लिए एक बायस लेके वो चलता है. जब पहले से ही आपने अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव सोच बना के रखी हो, या तो सामने वाले बंदे के लिए या फिर उसके टॉपिक, उसके मैसेज के लिए, तो आप क्या सुनोगे. और अगर आपने सुनने का प्रिटेंड भी किया तो भी कितना सुनोगे. सो ये जो लिसनिंग है वो दैट इज एक्चुअली यू ट्राई टू प्रिटेंड दैट यू आर लिसनिंग, यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग बिकॉज यू आर बायस्ड टॉवर्ड्स द मैसेज और द स्पीकर. So that is a sign, that is a failing communication is there. So जब आप किसी बंदे को लेकर या उसके मैसेज को लेकर नेगेटिव हो, बायस्ड हो, आपके दिमाग में प्रेजुडाइज है, तो वो जो कुछ भी आपको बताएगा आप उसको कैसे सुनोगे.
आप उसको सुनने के लिए सुनोगे, आप उस पर गौर नहीं करोगे, आप उसके शब्दों को सिर्फ हियरिंग करोगे, लिसनिंग भी नहीं होगा, ना ही आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को, ना ही आप उसके आप उसके वॉइस के ऊपर अटेंशन दोगे, क्योंकि पहले से ही दिमाग में सोच बना के रखे कि भैया ये काम का नहीं है, ये मैसेज बेकार है, ये बंदा बेकार है। तो ये जो लिसनिंग हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से तो हमने एक ऐसा नाटक किया लिसनिंग करने का, हमने लिसन तो किया ही नहीं। सो दिस इज नोन एज सिलेक्टिव लिसनिंग। सो इतने सारे लिसनिंग के प्रकार देखने के बाद कोई अच्छा फाइनल परफेक्ट लिसनिंग है या नहीं? हाँ है, उसे हम कहेंगे एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। सो व्हाट इज एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग? When the listener tries to understand as clearly as possible about what the speaker is saying, and at the same time he tries to understand the perspective, the point of view of the speaker, and empathize with the speaker, this is called active and effective listening. जब हम किसी की बात को सुनते हैं बड़े ही ध्यान से, उसके शब्दों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके आवाज को गौर करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, हम उसके पर्पस को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का कोशिश करते हैं और उसके साथ एम्पथाइज करने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने आप को उसकी जगह पे रखकर वो जो कहना चाहते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो इसे कहा जाएगा एक्टिव एज वेल एज इफेक्टिव लिसनिंग। You need to be fully present to do this type of listening. Fully present means physically, mentally, emotionally, as well as psychologically present. तब जाके ये एक perfect listening होगा. So you don't only pay attention to the words, you also pay attention to the voice and tone of the speaker. You also observe the non-verbal signals in terms of eye contact, facial expressions, gestures or hand movements, and posture of the person. And collectively you try to understand what he wants to say. You also try to understand his or her purpose and point of view. You put yourself into his position and try to understand his message from his perspective. So this is an example of active and effective listening. जब आप सामने वाले बंदे की बात को उनके शब्दों पर ध्यान देकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देकर, उनके वॉइस पर ध्यान देकर समझने का कोशिश करते हो, जब आप उनके नजरिए को, उनके पर्पस को समझने का कोशिश करते हो, जब आप अपने आप को उनकी जगह पर रखकर उनके मैसेज को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करते हो, तब जाके एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग होता है। एंड दैट इज द परफेक्ट लिसनिंग। स्टॉप।